بہت اچھی مطلب اس ہاں نہیں موضوع نہیں، کے اوپر۔ دیکھیں جس مذہب کو اللہ تعالیٰ قائم رکھنا اور پھیلانا چاہتا ہے اس کو حکومت عطا کرتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 22 لاکھ مربع میل کی حکومت اسی لیے اللہ نے دی کہ اللہ تعالیٰ کو اسلام کا غلبہ منظور تھا۔ یہ تو اسلام کے دشمن ہیں جو کہتے ہیں سیاست کو الگ کر دو۔ اگر سیاست اسلام کے خلاف ہو جائے اسلام ختم ہو جائے گا، یہی تو سازش ہے اسلام کے خلاف۔ جی مفتی صاحب آئے ہیں، کوئی بھائی؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ لیپ ٹاپ کے اوپر ٹک ٹاک لائیو کی ہے؟ ہاں وہ میں اس لیے کرتا ہوں لیپ ٹاپ پر کہ لائیو دکھا سکتے ہیں آپ۔ یہ دیکھیں نا، پوری کتاب آپ لوڈ کر کے نا سب کچھ اچھا، دکھا یہ سکتے۔ یہ جو ابھی آپ حوالے دکھا رہے ہیں، جی جی، یہ کون سا ٹول یوز کیا ہے؟ کوئی ٹول نہیں ہے۔ آپ جب لیپ ٹاپ سے آئیں گے نا تو جی جی، یہاں پر آپ کو ایک آپشن ملے گی، وہاں لکھا ہوگا کہ ایڈ سورس۔ ایڈ سورس، جی جی۔ جی ایڈ سورس میں آپ نے ڈسپلے کی آپشن، ڈسپلے کیپچر کی آپشن چوز کرنی ہے۔ اچھا ایک منٹ، آپ کو 2 سکرین چاہیے مفتی صاحب، یہ آپ کو پتہ ہے نا؟ ایک منٹ جی، میں لکھ لوں ذرا۔ ایڈ سورس کے بعد آپ نے ڈسپلے پہ جانا ہے؟ نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو 2 سکرین چاہیے ہوں گی، اچھا ٹھیک ہے نا؟ آپ ایک بھی سکرین لیں پھر آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ آپ کے ٹک ٹاک پر کیا ہو رہا ہے، اسٹوڈیو میں کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ 2 اچھا سکرین آپ کے پاس تو ہے نا، تو آپ دوسری سکرین بھی ہوگی آپ کے پاس، تو آپ اس میں سکرین پر رائٹ کلک کریں تو اس کو کہیں کہ ایکسٹینڈ دی ڈسپلے۔ سکرین میں ایک آپشن آئے گی، اگر 2 سکرین آپ نے لگائی ہوئی ہیں نا ایک ہی کمپیوٹر پر، تو آپ اس کو رائٹ کلک کریں تو وہ کہے گا کہ ڈسپلے سیٹنگ، ڈسپلے سیٹنگ میں ایکسٹینڈ ڈسپلے آپ نے چوز کرنا ہے۔ تو پھر آپ جو نہیں، پروگرام یہ نہیں، مجھے کچھ یہ بڑی فنی چیز کمپلیکیٹڈ آپ ہو گیا۔ بتا رہے ہیں، مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہی، کچھ نہیں سمجھ آ رہی۔ پہلے تو آپ کے پاس 2 سکرین لگانی پڑیں گی، آپ کے پاس ہیں 2 سکرین، میں نے دیکھی ہیں آپ کی دو ویڈیوز میں۔ سکرین تو ہیں، لیکن وہ 2 سکرین ایسی ہیں کہ 2 الگ الگ کمپیوٹر ہیں پورے پورے۔ نہیں نہیں، آپ دونوں سکرینیں جو ہے نا وہ تو سکرین، ایک سسٹم پر کرنی پڑیں گی نا؟ ہاں نہیں، ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دوسرے پر بھی اسے رہنے دیں، لیکن جو سکرین ہے نا اس کے ملٹیپل کنیکشن ہوتے ہیں نا HDMI کے، تو جی ہاں، جی ہاں۔ ہاں آپ اس کا ایک کنیکشن اس میں لگا دیں، تو جب دوسرا آن کریں گے تو دوسرا بھی آئے گا، پہلا آن کریں گے تو پھر وہ ڈبل سکرین بھی ہو جائے گا، بس ایک تار ایکسٹرا لگانی پڑے گی۔ ہاں ہاں، ہاں تو ہو جائے گا وہ ایسے، وہ آپ کو کوئی بھی جب آپ پروگرام جو میں دکھا رہا ہوں نا، یہ پاکستان کی حد بندی کے موقع پر غداری، یہ جی مجھے دوسری سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ چیزیں مجھے آنی چاہیے، تو اس معاملے میں یقین جانے میں نالائق ہوں۔ نہیں نہیں مفتی صاحب، اسی تاڑے کول سیکھے ہے کس طرح سوشل میڈیا چلانا یہ ہے۔ نہیں، یہ جو بڑی کام کی چیز ہے، میں نے ٹرائی کی ہے، پچھلے 2-3 دن مسلسل لگا رہا ہوں۔ ہاں جی، وہ ٹک ٹاک لائیو اسٹوڈیو میں تو نے آپ کا ڈاؤن نہیں لوڈ چلا؟ کیا۔ نہیں چلا؟ جی نہیں، وہ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں لائیو بند ہے نا۔ نہیں 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 نہیں، آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آپ وی پی مبشر جیسے بھائی، نہیں نہیں، ایک منٹ میں ان کو یہ بات مبشر سمجھا بھائی دوں۔ ان کو یہ بتا دینا بیٹا پروگرام بھی آن ہے نا نہ آپ نہ کا، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹک میں ٹاک بیٹا نہیں نہیں پروگرام؟ نہیں نہیں، یہ غلط، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو اسٹوڈیو اس لیے نہیں آپ کا چل رہا ہے، اس لیے آپ اگر ٹک ٹاک پر آ سکتے ہیں آپ اسٹوڈیو بھی چلا سکتے ہیں اسی VPN پر۔ بات یہ ہے کہ اسٹوڈیو پرانے کمپیوٹر پر نہیں چلتا، آپ کا اچھا کمپیوٹر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پروسیسر اس میں لگا ہونا چاہیے، AI پروسیسر، ٹھیک ہے؟ اچھا اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو وہ آپ کو کہے گا کہ ابھی آپ کی اجازت نہیں ہے، ہم آپ اپ ڈیٹ کرتے ہیں پھر شاید آپ کا چل جائے، یہ میسج آتا ہے ادھر۔ اچھا وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ آپ کا کمپیوٹر ویک ہے۔ یہ جس کمپیوٹر پر میں چلا رہا ہوں نا، یہ برانڈ نیو میں نے خود، میرا پرانا کمپیوٹر تھا نا اس پر نہیں آتا تھا،
तो फिर मुझे किसी ने बताया, हमारे आईटी डिपार्टमेंट ने, कि आप नया कंप्यूटर लें जिसमें एआई प्रोसेसर लगा हो। तो मैंने फिर नया लगाया और उसमें 32 गीगाबाइट रैम है, और उसके बावजूद ये आहिस्ता चलता है। इसकी रेजोल्यूशन वो इससे भी ज़्यादा ताकतवर मांगता है, लेकिन आपको कंप्यूटर जो है ना, ज़्यादा ताकत का जो है एआई प्रोसेसर, पता है ना, आर्टिफिशियल अच्छा, इंटेलिजेंस ये का। कोई नए आए होंगे मेरे इल्म हाँ, में। ये जो है ना, आपके कंप्यूटर पर विंडो 11 नहीं होगी। नहीं, मैं तो विंडो पुराने बाबों वाला यूज कर रहा हाँ, हूँ, नहीं विंडो नहीं, 7, विंडो 7। ਨਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? विंडो 11 पे चलेगा ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਟੂਡੀਓ ਚੱਲੇਗਾ 7 ਤੇ? ना 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 ना, भूल जाओ। ये 10 पर भी बड़ी मुश्किल से चलता है, लेकिन ये विंडो 11 7 जिस दौर का आप यूज कर रहे हैं, उस दौर में तो टिकटॉक था भी नहीं ना। नहीं आप था, विंडो था 11 यूज उधर करें। था, लेकिन वो मुफ्ती साहब, विंडो 11 से नीचे स्टूडियो नहीं चलता। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, आप जो मर्ज़ी कर लें, विंडो 11 से नीचे आपका होगा ना विंडो, तो आपका स्टूडियो नहीं चलने वाला। ठीक है। हाँ, अल्लाह अकबर, हो जाएगा डॉक्टर साहब, अल्लाह खैर फरमाएगा। तो लेकिन ये ना पिछले 2 दिन से मुझे जो है ना वो जज्बा जुनून आया है नहीं कि नहीं, चलाएं। एक तो इम्तियाज भाई भी करते हैं आपकी तरफ की, फिर ये कादियानी, तकरीबन कादियानी यही कर रहे हैं, अब स्टूडियो नहीं, यूज कर रहे हैं। हाँ, ये माइंड देखें रोस्टर ना, भी ये कर रहा है, ये नादर सीकर भी तलत कर भी रहा कर है, रहा हमारा है, सीकर भी कर रहा हाँ, है, सीकर भी यही मैं- कर रहा है। सीकर साहब भी कर रहे हैं। मुफ्ती साहब ये देखें, ये मैंने एक लगाई हुई है असेंबली की कार्रवाई। नंबर 2, ये मैंने मिर्दे की आखिरी वसीयत लगाई हुई है। नंबर 3, ये तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने सिस्टम से हवाला जात ऐसे ये चुटकियों के अंदर शेयर कर सकूं, दिखा हाँ, देखें सकूं। ना, मैं कितने सारे हवाला जात, ये फिर दीदे हक भी इसी पर लगी हुई है। ये देखें, एक क्लिक होती है और ये बदल जाते जी, हैं सब कुछ। डॉक्टर साहब नई आरटी आई है, इनसे बात कर ले। हाँ जी, क्या हाल है आपका किंग जी कौन थोड़ा सा? जी अल्लाह का कर। आप जी, अपना बस थोड़ा तारुफ पता करा करा दें ली। भाई, कह रहे हैं कि आप कादियानी हैं, मुसलमान हैं, कौन है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान नालत भेजता हूँ मैं कादियानियों पे, उनकी हिमायत नहीं करने नहीं, वालों पे, बहुत हो गया। उनसे हमदर्दी रखने वाले पे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बस वरहमतुल्लाहि मैं वबरकातुह। जज़ाकल्लाह। खैर, वो मुफ्ती साहब बोले थे पाकिस्तान में ब्रॉड अभी बंद है। आप यकीन कीजिए, मैं कई 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, हाँ जी, और अभी मैं पाकिस्तान में ही हूँ, और विदाउट जो है वीपीएन यूज़ कर रहा हूँ। मैं अभी चाहूँ तो ऑनलाइन आ सकता हूँ मोबाइल से। हाँ, नहीं वो मुफ्ती साहब नहीं बात किंग कर रहे हैं कॉन्ग स्टूडियो भाई, की, बात स्टूडियो ये है की। टिकटॉक तो हम भी यूज कर रहे हैं, वो तो मोबाइलों के ऊपर करते हैं, वो एक अलग जी, चीज जी, है। ये लैपटॉप और कंप्यूटर की बात हो रही है कि Windows। लैपटॉप और कंप्यूटर के ऊपर आप यूज करें टिकटॉक लाइव स्टूडियो का इस्तेमाल करते हुए। ये एक अलग से सॉफ्टवेयर है टिकटॉक वालों का, जो कि लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए उन्होंने जारी की है। तो जी, 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 उसमें ये तरीका होता है कि आपके लैपटॉप या सिस्टम में जो हवाला जात पड़े होते हैं, तो आप जिस तरीके से ये डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं ना, अपने माउस का इस्तेमाल करते हुए, हाँ जी, माउस या कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए, अब ये नीचे कोई कमेंट भी करेंगे तो अपने कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, हाँ जी। और जब ये हवाले को ऊपर नीचे करेंगे तो माउस का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे भाई जी, समझ ये गया। चाह रहा हूँ मैं, समझ रहे हैं कोई बात है? समझ रहे हैं कोई जी बात? बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा, एक थोड़ा सा डॉक्टर साहब, अगर अभी मौजू से हटके एक बात थी, कल शायद आपने एक उनके जो वो टीची और इनके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग दी थी, तो मैं मौजूद था। तो ये शेर थे। अली नाम का कोई एक इधर जो मुफ्ती साहब है ना, ये जी, जी। सबसे बड़े बाहर हैं कादियानियत के। अगर आपने जो सोशल मीडिया पर पायनियर सुना है ना, जो मौजूद हों, जी, जी। जद्दे आला बैठे हुए हैं आपके सामने मुफ्ती साहब, इनसे पूछिए। माशाल्लाह। अभी वो बस मैं ये पूछना था कि वो आपने अभी एक ब्रॉड पे मैं गया था, जी। तो मैंने उनको से जिक्र किया था, अपने अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ही थे सब, तो उन्होंने बोला ये बिल्कुल नई खबर है हमारे लिए, अगर आपके पास इसका हवाला हो तो हवाला दे दीजिए। किस चीज का हवाला?
जो कि उसकी सीधी आंख उल्टी आंख पे लगा दी थी, उल्टी आंख की जगह हाँ और उल्टी नहीं आंख की जगह। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨੇ ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਨੇ ਧੋਤੀਆਂ अच्छा जी, वो अच्छा, वो मैंने- आंख निकालने वाला वो मैंने असल में वो एक ख्वाब है मिर्जे का। जी जी नहीं, वो किताब का कोई हवाला वगैरह हाँ जहाँ लिखा अभी दे देता हूँ, अभी दे देना फिक्र स्क्रीन शॉट मैंने ले लिया था, नहीं नहीं मैं आपको स्क्रीन शॉट दोबारा मैंने लिया था लेकिन मैं वो हवाला नहीं आया। डॉक्टर साहब दे देते हैं अब थोड़ा सा। जी जी हाँ, जी जी अब मैं खामोश। मैं जो है ना आपको अभी वो दोबारा दिखा देता हूँ। हमने तो बड़ा इनको ना खोल के रखा हुआ है, आप फिक्र ना करें। ये मैं इसको डॉक्टर साहब ये जो कुछ आप कर रहे हैं ना, बस ये चाहता हूँ मैं, हाँ जी ये वही स्टूडियो में ही ये होता है। वल्ला ये चीज मुझे आ जाए ना और मेरे मतलब तो ओए होए होए ਅਸੀਂ ਧੂੜਾਂ ਪੱਟ ਦਈਏ ਯਕੀਨ। नहीं 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 आप लगाए हैं मुफ्ती साहब विंडोज 11 के ਤੇ अलावा ਫਿਰ नहीं ਨਾ चले। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ। हाँ नहीं नहीं ये तो बड़ा ਇਹ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ आप ਸਮਝ ही ना नहीं आ रही। एक काम करें डॉक्टर साहब, आप ना चाहे आधे घंटे की हो जाए कोई बात नहीं, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ना लगा के स्क्रीन रिकॉर्डिंग और इसको चलाना जो है ना वो दिखाएं कि ऐसे चलाया मैंने, हाँ तो जी। वो मुफ्ती साहब को भेज दे ताकि नहीं मुफ्ती साहब देख ले कि आप आपने मुफ्ती साहब क्या तरीके का इंकसार से काम ले रहे हैं, इन्हें बहुत बातें पता है। ये देखें जी ये पुराना तस्करा का एडिशन है, उसका सफ़ा नंबर 24 है। मैं आपको नीचे करता हूँ, आपको नज़र आएगा। ये देखा आपने, ये तस्करा आ का गया। सफ़ा नंबर सफा नंबर 24 है। 24 जी। और मैं इसको थोड़ा सा ये देखें, आप नज़र आ गया ना, इसको अभी अब ठीक मैं है, बेहतर ऊपर है। कर रहा हूँ तो ये देखें ये आ गया शेर अली। ये आपने सफ़ा 24 की बजाय आपने 1878 का इसका इल्हाम या जो भी जालसाजी है वो तलाश करनी है। 1878 लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना। जी जी बिल्कुल आ रहा है। हाँ ये आ रहा है। शेर अली है। ये वो एक ख्वाब में इसके फरिश्ता आया, उसने कहा उसने मुझे एक जगह लिटाकर मेरी आंखें निकाली और साफ़ की। यही ढूंढ रहे थे आप? जी जी बिल्कुल। हाँ बस ये आप इसकी तस्वीर ले लें। और तस्करा का सफ़ा 24 है लेकिन पुराने एडिशन का। ठीक है जी। ये ओल्ड नए एडिशन एडिशन में 30-40 सफ़े इधर उधर आराम से कर देते हैं। जी जी वो नए एडिशन में जहाँ तक मुझे जो समझ में आता है ना हाँ। कि इनकी अगर आप 30-40 साल पुरानी किताब देखेंगे बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। ये उसको सही करते जा रहे हैं, ये यानी उसमें से गलतियाँ निकाल रहे हैं। हाँ जी। तो मुफ्ती साहब आप अपना कंप्यूटर अपग्रेड करें तो इंशाल्लाह ये उसी वक्त चल पड़ेगा। आपको 2 हाँ, मिनट बस लगेंगे। ये मैंने सीखना है तो मुझे बड़ा इश्तियाक है और कि मुफ्ती मुझे साहब खुद मेरे आपको 2 मिनट लगेंगे। आपका बस ना ए जी बाबा जी सिखाओ सन। हाँ सिखाओ। नहीं मुफ्ती साहब इस अच्छा तरह- ये मैं ये जो भाई थे किंग साहब गालबन पूछा था, जी तो इस चीज में थोड़ा सा इजाफा कर लें कि ये कशफ खत्म हो रहा है, मैं उस कशफी हालत से बेदारी की तरफ मुंतकिल हो गया। ठीक है, तो ये बेदारी की तरफ मुंतकिल हो गया। यहाँ पे जाके मिर्ज़े कादियानी का कशफ खत्म होता है। तो ये हुआ पता है क्या था कि उस वक़्त ना वो जगा दिया था, वो जो पैरे के ऊपर रखी हुई थी मिर्ज़ा कादियानी ने, माई फज्जो और मुंशियानी और दीगर कुछ लड़कियां उसने रखी हुई थी सिर्फ इस काम के लिए कि जब मुझे इल्हाम होने लगे ना तो 12-1 बजे तकरीबन इल्हाम होने शुरू हो जाते हैं। तो जब इल्हाम होने शुरू हो जाए तो मुझे तुमने जगा देना है। तो वो अक्सर ये कहती थी कि जब दरमियान में इल्हाम पहुंचता था ना तो वो जगा देती थी। तो वो मिर्ज़े कादियानी की वही और इल्हाम अधूरा रह जाता था। तो ये अगला इल्हाम शायद ये था कि उन्होंने तो मिर्ज़े कादियानी का शायद शेर अली ने ज़कर भी काटना था। अभी तो सिर्फ उसने आंखें ही निकाली थी, आगे बड़ा कुछ करना था। लेकिन रोला ये हो गया है कि वो ना दरमियान के अंदर ही इल्हाम को जगा दिया उन जनानियों ने। तो ये असल में ये ज़्यादती हुई है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है मिर्ज़ा जी के इल्हाम के साथ। जी।
मुफ्ती साहब वो अखा साफ कीतियां तो एक वड्डी एक छोटी हो गई। नहीं नहीं, वो लड़की ने जगा दिया है ना, इल्हाम तो जारी था, हाँ अभी तो इल्हाम बिल्कुल अभी इसको जियां हो जानियां सन लेकिन एक बड़ी छोटी तां रह गई विच जगा जो दिता है। जगा सही देता कह रहे है। हैं मुफ्ती हाँ साहब। जी, हाँ जी, आगे उसने और भी बड़ा कुछ करना था, हाँ तो वो बस दरमियान में ना उठा दिया है लड़की ने। हाँ, नहीं बात आपकी मुफ्ती साहब बिल्कुल ठीक है, ऐसी गड़बड़ हुई है वहाँ से। हाँ तभी उसको कहते हैं मिर्जा काना। जी जी जी। जब भी कामा वो आपने कामा मुफ्ती साहब डॉक्टर साहब उस दिन ना शायद डिटेल बता रहे थे ना इनके जो टीची टीची ये शेर मीठी रोटी वाला और ये सब, तो इन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया था कि एक था जो उल्टा लटका हुआ था, मैं नाम भूल रहा हूँ, लाल करके कुछ था। हाँ अभी जी, दिखा तो देते हैं आपको, जी, मिठन लाल उसका नाम वो है। मिठन लाल जी, वो असल में उनको वो नशे आवर चीजें ला के देता था। हाँ, तो मिठन असल लाल, में ये मिर्जे के असल में सारे फरिश्ते हैं ये। जी जी, तो वो मिठन लाल जो इनको ला के देता था ना, असल में सबसे बड़ा वो मिठन लाल या नजर ये आया। जी जी, असल में टीची टीची बड़ा नहीं है, बड़ा तो वो है, क्योंकि उसी के आने के बाद फिर सारे आते थे, क्योंकि पी लेते थे ना। अल्लाह अल्लाह। नहीं अब मुफ्ती कादियानी साहब, कोई आएगा एकदम, उसने पता है क्या कहना है, कहना मौलवी इधर सारे बैठ के गालियां दे रहे हैं। हम तो हवाले दिखा रहे हैं यार। हकीकत पे बात कर रहे हैं ना, ये आप ये मुकर जाए इसको। हाँ, नहीं नहीं, वो इन्होंने एक हल पकड़ा हुआ है बेहतरीन, हाँ, मुफ्ती है कि साहब भाई तुम वो गालियां दे। ये पक्का मिठन लाल का जिक्र जो है ना, वो तज़किरा का पुराना एडिशन सफ़ा 474 के ऊपर आपको मिल जाएगा। हाँ मिठन लाल जो फरिश्ता था मिर्ज़े कादियानी का। हाँ, जी नहीं नहीं, हमारे पास है ना मिठन लाल हाँ का। हाँ अभी मिठन लाल के हमने इनको रेफरेंस भी दिखाए, हाँ। तो ये हमने निकाल के रखे हुए हैं। मिठन लाल अभी निकल आता है यहाँ से, ये नहीं है, ये फरिश्तों के रेफरेंस हैं जी इधर सारे। ये मिठन लाल भी है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है मिठन लाल का रेफरेंस, ये देखें जी, मिठन लाल जो है हाँ, ये, तज़किरा का सफ़ा 474। हाँ तस्करा वो का, आपके पास जो तज़किरा रखी है उधर से ही देख लें। हाँ जी, तो ये है पुरानी मिठन लाल, खैराती, दर्शनी, टिची टिची। मुफ्ती साहब ये आप वाला पम्फलेट लगता है मुझे, जो आपने बनाया हुआ है। मुफ्ती साहब ऐसे सच्ची बात पर बनाया करते थे बहुत सारे। अच्छा, ये है डॉक्टर साहब कि ये अभी हवाले जो आप तब्दील कर रहे हैं, तो ये स्क्रीन आपकी एक ही खुली हुई है? एक ही स्क्रीन है। अच्छा अच्छा अच्छा, यही चाहता हूँ मैं, ये हाँ, आपने जो है ना विंडो चूज नहीं करनी, आपने अच्छा, विंडो नहीं चूज, डिस्प्ले कैप्चर डिस्प्ले। चूज करना है। सही सही तो उस सही। स्क्रीन पर जो भी आएगा ना वो नजर आने लगेगा। हाँ, ये चाहता हूँ, बस यही हाँ, चाहता हूँ। आप देखें, अगर मैं इसको बंद कर दूं ना, ये अभी मैंने वो फोटो डिस्प्ले खोला हुआ है, तो उसके नीचे वाली स्क्रीन आपको खुद ब खुद नजर आनी शुरू हो जाएगी। नहीं, एक मिनट, मैं अभी मिसाल है आप अभी अपने फोल्डर में जाएं जरा, किसी फोल्डर में। अच्छा, फोल्डर नहीं आपको नजर आएगा जब तक आप मैं ट्रांसफर ना करूं। हाँ, ये मतलब बैक पे मैं जो कुछ भी करूं वो नजर ना आए। नहीं, देखें, आपको जो स्क्रीन दूसरी वाली नजर आएगी, पहली वाली नहीं नजर आएगी। हाँ, ये ठीक ठीक। देखें, अब जो मैं फोल्डर खोलने लगा हूं ना, आपको नजर आ रहा है? हाँ, यही चाहता हूँ मैं, ठीक है ठीक। आपको ठीक। नजर आया मेरा फोल्डर? हाँ, नहीं, वो नहीं आना चाहिए नजर। हाँ, नहीं आएगा। मैंने फोल्डर जब खोल के ये फरिश्ते लगाए तो आपको मेरा सही। फोल्डर तो दिखाई नहीं पड़ा ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल हाँ, ठीक। इसीलिए मैंने कहा ना कि अगर स्क्रीन एक होगी तो फिर फोल्डर भी नजर आएगा। अच्छा 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 अच्छा। अगर स्क्रीन दो होंगी तो फोल्डर नहीं नजर आएगा। अल्लाह अकबर। डॉक्टर साहब, इसके लिए तो इसका मतलब है मुझे अब ऐसा सिस्टम बनवाना पड़ेगा कि जिस पर ये आप जो कह रहे हैं एआई प्रोसेसर या जो भी है, नहीं, विंडो समझ रहे हैं? 11 जिस पर चलती है ना, जिस कंप्यूटर पर विंडो 11 लोड हो नहीं, जाए। इस पे मेरे सिस्टम पे वो नहीं है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, क्राइटेरिया ये है
کہ جس سسٹم پر ونڈو 11 لوڈ ہو جائے وہ سسٹم آپ جو ہے نا یہ اسٹوڈیو چلاتا ہے پکا گارنٹی کے ڈاکٹر ساتھ. صاحب ایک کام کرنا ہے آپ نے, اب جی. دیکھ لیں یہ کام آپ نے کرنا ہے. جی جی ایک تو یہ اس کی ویڈیو بنا کے سینڈ کریں گے, دوسرا ریٹرن کے اندر آپ پروسیسر یا جو بھی سسٹم کی مفتی صاحب یہ پکا فراڈیا بھائی نہیں ہے ہمارے, یہ نیچے میسج لکھ رہے ہیں کہ وہ آئی ٹی کنسلٹنٹ ہیں اور وہ آپ سے ریموٹلی کنیکٹ کر کے سب کچھ دکھائیں گے آپ کو. اچھا یہ پکا فراڈیا کوئی مسلمان ہے کہ ہاں ہمارے بھائی ہیں بڑے, یہ آپ کا فین ہے, آپ کا فین ہے یہ بہت بڑا. اصل میں پتہ کیا ایک منٹ اس میں ہوتا یہ ہے نا, دیکھیں ہم تو پرانے ہیں, بڑے پہلے بھی بڑے معاملات ہزاروں دفعہ ہوا ہے, کوئی ایک دفعہ نہیں. ہم تو پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے. آپ پکا فراڈیا بھائی آپ جگہ آپ یہ بھائی آئے ہیں, کون ہے زاہد صاحب, کیا حال ہے آپ کا؟ ہاں جی زاہد جی صاحب. یہ ڈاکٹر صاحب کال والے زاہد بھائی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سارے دوست ہاں آپ قادیانی تو نہیں ہے نا؟ سر کل گل ہو رہی سی تواڈے نال. ہاں چلو ٹھیک ہے پھر ماشاءاللہ مجھے ہاں توبہ نعوذ باللہ ہو جائے لفظ جڑا نا وہ نہیں ہمیں ان کے آنے پر اعتراض کوئی نہیں ہے, لیکن ہم بس وہ تھوڑا سا پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی نہیں صحیح ہاں ہمیں کسی قادیانی کوئی آ جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ایز لانگ ایز وہ ہمیں گالیاں نہ دے, ٹھیک ہے نا. تھوڑی سی بدتمیزی کر دیتے ہیں نا اس ہاں لیے وہ آ کر گالیاں بول ہاں دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر وہ شاطنیت نہیں کرے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, اگر شاطنیت کرے گا تو پھر نہیں. ہاں جی بس بالکل. کل ایک آیا تھا ڈاکٹر صاحب, ہاں پکا فراڈیا بھائی ذرا آپ وہ ریکویسٹ ڈالیں. چودھ صاحب اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو تھوڑی دیر بعد لے لوں. یہ میں نیچے چلا جاتا ہوں ڈاکٹر صاحب. نہیں یہ چودھری صاحب سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب منو بھی تھلے کر دیو, ڈاکٹر صاحب منو بھی کر دیو تھلے. نہیں تسی سارے بیٹھو. نہیں آپ بیٹھے ہیں. چودھ صاحب ٹھیک ہے, ہاں جی آ جائیں آپ. پکا فراڈیا بھائی مفتی صاحب نے آپ سے بات کرنی ہے. نہیں وہ بھلے نیچے بیٹھ کے بھی سن لیں, کوئی نہیں, بس اتنا ہی نہیں ہے. وہ لکھ رہے ہیں نا, وہ آپ کو کر کے دکھا دیں گے. یہ دیکھیں میں نے ان کو بلایا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ میں آپ کا بڑا پرانا فین ہوں, سنتا رہتا ہوں آپ کی گفتگو, اور آپ کا جو سٹائل ہے نا ماشاء اللہ دا بیسٹ. اچھا میں انشاءاللہ نا جب بھی یہ جو آپ نے سوال پوچھا نا یہ پوچھ رہے ہیں ان سے, تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہوا نا تو ہم ارینج کر لیں گے. میں آپ کو سارا شو کر دوں گا اور چیک کر لوں گا آپ کے پاس کون سا سسٹم ہے, اور وہ ساری جو ہے نا انفارمیشن وہ انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا. یہ ڈاکٹر صاحب نے دیکھا ہے میرا سیٹ اپ, میں بھی پروفیشنل ہوں آپ کی طرح انشاءاللہ, تو یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. بڑی بات ہے. بہترین واٹس ایپ ہے میرا واٹس ایپ آپ کے پاس؟ جی میں آپ کو ساری ڈیٹیلز دوں گا, واٹس ایپ بھی. یہ ڈاکٹر صاحب کے پاس میں آتا ہوں تو یہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں. میں آپ کا کب سے فالو کر رہا ہوں. آپ ہوتے ہیں نا جو ضیاء رسول صاحب کے ادھر, تو عامر نذیر صاحب, تو میں دیکھتا رہتا ہوں آپ کو, گفتگو آپ کی سنتا رہتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. اور آپ کا سٹائل مجھے بہت پسند ہے, جو آپ کا طریقہ ہے نا. ٹھیک ہے جی, سو انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کر لوں گا ان باکس پہ نمبر اپنا, تو جب آپ کے پاس ٹائم ہوا تو میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا انشاءاللہ. بالکل جزاک اللہ جی, بڑی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. میں سن رہا ہوں آپ کی باتیں. ہاں نہیں آپ بیٹھیں یہاں پر, کوئی بات نہیں. ابھی ایک جگہ خالی ہے جس بھائی نے آنا ہے. 1 منٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ایک سوال تھا پکا فراڈی بھائی سے. ہاں جی کریں آپ. جی بھائی, یہ پکا فراڈی بھائی, یہ جو حسن الجاری جس طریقے سے یوز کرتا ہے یہ وہی طریقہ کار ہے اگر آپ نے دیکھا ہو؟ نہیں وہ ٹک ٹاک نہیں غالباً یوز کرتا. نہیں طریقہ کار جیسے اسکرین شیئرنگ وغیرہ اور یہ.
देखें स्क्रीन शेयरिंग, मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल ना किस हमारे काम पर भी जो कंप्यूटर है ना, कम से कम 2 स्क्रीन लगा के देते हैं हमें वो कंप्यूटर के साथ, काम पर भी, क्योंकि एक स्क्रीन से काम नहीं चलता है। 2 स्क्रीन अब स्टैंडर्ड हो गया है, एंट्री स्टैंडर्ड हो गया है, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड में 4-5 पोर्ट होती हैं आजकल, तो आप 4-5 स्क्रीन लगा सकते हैं, लेकिन 2 स्क्रीन तो मिनिमम है। 2 स्क्रीन के बगैर एक स्क्रीन पर आप अपना मेन प्रोग्राम देखें, दूसरे पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स रखें, और स्क्रीन कैप्चर जो है ना, डिस्प्ले कैप्चर, आप जब स्क्रीन पर डिस्प्ले कैप्चर लगाएंगे, हाँ देखें मुफ्ती साहब दिखा रहे अब हैं, ये देखें, एक मेरी स्क्रीन ये रखी है, हाँ जी, एक स्क्रीन ये रखी हाँ है, बस ठीक है, यही है। स्क्रीनें तो हैं, लेकिन रोला यहाँ ये 2 अलग अलग सिस्टम है, यानी नहीं मुफ्ती साहब, आप जो है ना, इसमें 2-3 कनेक्शन होते हैं स्क्रीन में, आप एक कंप्यूटर से लगाएं, दूसरा कनेक्शन आप दूसरे कंप्यूटर में भी लगा दें, तार ही लगानी पड़ेगी, तो वो खुद ब खुद जब आपका एक कंप्यूटर बंद होगा ना, तो आपको ये स्विच करना पड़ेगा। अगर आप एक स्क्रीन पर 2 कंप्यूटर लगाएं ना, तो आपको स्विच करना पड़ता है, वो आपसे पूछता है कि आपने स्क्रीन नंबर 1 डॉक्टर साहब एक थोड़ा सा मैं अर्ज करूं जी, जब तक मरीज के मर्ज का डॉक्टर तशखीस ना करे तो वो दवाई देना मुश्किल हो जाता है ना। ये नहीं, ये पक्का फ्राडिया भाई आपको सब कुछ कर देंगे, मैं ये अर्ज आईटी करता वाले हूँ, हैं। मैं अर्ज करता हूँ कि अब मैं एक सिंपल इंग्लिश मुझे नहीं आती, ठीक है, इंग्लिश नहीं आती। अब लाइव वो जो लाइव स्टूडियो, टिकटॉक लाइव स्टूडियो है, उसके अंदर इंग्लिश लिखी हुई है। मोटे मोटे जो हमारे पहले टूल इस्तेमाल में थे, उसके जो बटन, वो तो चलो पता चल जाता है कि यार कहाँ से क्या करना है। अब उसके अंदर इतना खलारा है, वो समझ ही नहीं आती कहाँ से क्या करना है, क्या करना है। नहीं ऐसा अच्छा, नहीं है मुफ्ती साहब, आपको गलतफहमी हुई है उसके बारे में। उसमें 2-4 आपको जब एक दफ़ा समझ आ जाएगी ना, तो 2-4 बटन ही इस्तेमाल करने होते हैं, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करने। वो जो मल्टी गेस्ट का है वो यूज़ करें, और फिर अपनी विंडो डिस्प्ले यूज़ हाँ करें। बस हमारा काम होना चाहिए, हाँ, बस मैं ये 2-3 बटन में काम हो जाता है। हाँ, फिर हाँ, बड़ा इतना सादा सा गहराई काम में है। जाने की जरूरत नहीं है हमें, बस। बिल्कुल नहीं है, बल्कि 2-4 जो बटन है वही आपको सीखने पड़ेंगे। मतलब ये डॉक्टर साहब देखे ना, इधर अभी डिबेट शुरू हो जाती है। जी। अब डिबेट के अंदर होता है हवाले पे हवाला सटो भाई, देखिए बिल्कुल हाँ, तो ये चाहता हूं मैं कि बस हवाले पे हवाला, हाँ, माउस मेरे हाथ में हो और ये हवाला वो हवाला है। अब यहाँ पे हमें ना अब क्या करना पड़ता है, मोबाइल को हाथ पे पकड़ना पड़ता है, स्क्रीन ऑन करनी पड़ती है, फिर अपने सिस्टम के ऊपर हवाला दिखाते हैं। ये देखें मैंने कौन सा प्रोग्राम खोला हुआ है, ये है एडोबी। एडोबी, हाँ जी। ये एडोबी में आप देखें, मैं इसकी टैब को बदल रहा हूँ, आप देखना, आपको टैब नज़र आ रही है ना, ये देखें, इस टैब को बदला तो ये आ गया। मैंने एडोबी में 5-6 किताबें खोल रखी हैं, देखें जब मैं उसकी टैब बदलता हूँ ना, तो किताब बदल जाती है। आप ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एडोबी ही इस पर नज़र आएगा, आप कोई भी चीज़ उस स्क्रीन पर खोलेंगे वो नज़र आने लगेगी। और आप इसको देखें, मैं आगे पीछे करके सिर्फ वो नहीं, एडोबी की बहुत सी चीज़ें, ये एडोबी का क्या है? ये एडोबी पीडीएफ रीडर है। हाँ, एडोबी पीडीएफ रीडर, हाँ जी। ये क्या कहते हैं इसको, एक्रोबैट जिसका नाम है। एक्रोबैट, देखे ना, उसमें भी बड़ी किस्में हैं। हाँ, पीडीएफ रीडर की हाँ, बड़ी किस्में हैं। एक्रोबैट को चला रहा हूँ मैं, और वो तो मतलब देखें मैंने 5-6 किताबें खोल रखी हैं, और क्लिक करें तो किताब बदल जाती है। मुफ्ती साहब नहीं, इसका मतलब है आप पीडीएफ को ओपन कर रहे हैं, पिक्चर को ओपन नहीं कर रहे, किसी पिक्चर को कर रहे हो। नहीं देखें, पिक्चर का ऐसे है, अभी मैं अपना वो एक्सप्लोरर खोलने लगा हूँ, अपनी फाइलें आपको नजर नहीं आएंगी। कोई एक पिक्चर, कोई सी भी एक पिक्चर लगाए, पीडीएफ नहीं। फोटो लगाऊं मैं? हाँ, फोटो हाँ, फोटो भी लग जाएगी, ये मैं आपको अभी लगा देता हूँ। ये देखें मुफ्ती साहब, जो आप हवाले जो कह रहे हैं ना,
जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, ये जो डॉक्टर साहब ने जैसे आपको दिखाया ना, एडोब PDF जो होता है ना, वो जितने भी आप हवाले करेंगे उसके टैब बने होंगे, और जब आपको हवाले चाहिए होंगे तो आपने सिर्फ टैब पे क्लिक ही करना है जो आप लोगों की ज़रूरियात है। नजर आई फोटो हाँ, मुफ्ती साहब? तस्वीर आ गई है, ये ठीक है। नहीं नहीं, ये देखें, मैंने जो दूसरी स्क्रीन पर मैं कुछ भी खोल लूं वो इस पर आएगा। सही पहली स्क्रीन पर मैं जो कुछ भी खोल लूं किसी को नजर नहीं आएगा। सही आपको मेरा फोल्डर तो नहीं नजर आया ना? ये वो अब्दुलसलाम गद्दार जो था वो नोबेल प्राइज लेते हुए। हाँ, सही। हाँ, तो आपको ये, अब मैं इसको फोल्डर, ये फोटो को बंद करूंगा ना, फिर वो पिछली वाली लेयर नजर आनी शुरू हो जाएगी, डोबी एक्रोबैट वाली। ये बहुत आसान है। डॉक्टर साहब, ये आपने एक्सटेंडेड मोड है ना, एक स्क्रीन जो है एक्सटेंडेड मोड है, दूसरा जो हाँ, है एक्सटेंडेड डिस्प्ले जिसको कहते हैं। यही है। हाँ, नहीं, वो सेट हो जाएगा इनका, बस वो चेक करके इंशाल्लाह वो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। इंशाल्लाह। सही, ठीक। वकास साहब, हाँ, क्या हाल है आपका वकास साहब? ठीक है। अच्छा साहब, पता कर रहा था पूरा इसका के। नहीं, ये वकास साहब से पूछ लें, आपसे पहले भी आप आए हैं हमारे पास वकास साहब? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं पहली मरतबा आया हूँ सर। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि आप मुसलमान हैं, कादियानी हैं, क्या है? जी अल्लाह के फजलो करम से मुसलमान है सर हम। हाँ, तो मिर्ज़ा कादियानी के मानने वाले तो नहीं हैं आप? जी नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया जी। हम वैसे ही पूछ लेते हैं, हमें उनके आने पर कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन हम वैसे पता कर लेते हैं। तो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर डॉक्टर साहब भाई बुरा ना महसूस करें तो मुझे के ऊपर लात न डालें। उन्होंने कह दिया, वो उसको नहीं मानते। नहीं, इस तरह आम मर्ज़ी भी यही बोलते हैं। नहीं, वो उसमें होता ही है कि बंदे की गुफ्तगू से ना सब पता चल जाता है हमें। ये झूठ बोलेंगे भी तो आगे गुफ्तगू जो करेंगे ना उससे सब पता चल जाता है, वो टेंशन नहीं है। और मुफ्ती साहब वो ब्राड शिकायत कर देने, बल्कि ये तो डॉक्टर साहब तो पूछ रहे हैं ना, हमने तो कभी पूछा भी नहीं है कि भाई कौन है। हाँ, बल्कि उसको सवाल की इजाजत देते हैं, वो पता चल जाता है, उसके सवाल के अंदर सब कुछ मुस्ततर होता है, पता चल जाता है कि बंदा क्या है। हाँ, ये नए भाई कोई आए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम। आप मुसलमान हैं, अहमदी हैं, कादियानी हैं, कौन है भाई? भाईजान, मैं अगर कह दूं कि मैं अहमदी हूं तो मुझे गालियां तो नहीं निकालोगे? बिल्कुल नहीं निकालेंगे भाईजान। मैंने मुफ्ती साहब से छोटा सा सवाल पूछना है, अपना पर्सनल सवाल। ये जी जमात कादियानिया से ताल्लुक़ रखते हैं मुफ्ती साहब। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तो ठीक। आप इनसे बात अच्छा, अपना नाम जरा बता दें कि आपके नाम से हम मुखातब। मुफ्ती साहब किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं? नहीं, आपका नाम क्या है? नाम पूछे। मेरा नाम इकबाल है, मोहम्मद इकबाल नाम है। आप अहमदी हैं? नहीं, मैं अहमदी नहीं हूँ। अच्छा, नहीं है, ठीक। तो अच्छा, अभी चलें, करें कहा था कि अच्छा चलें, ठीक है, आपने सीधा फिर चले। भाईजान, मैंने पहले पूछा कि काइंडली मुझे थोड़ा सा बता दें, ये ब्रॉड एमक्यू की है? नहीं, ये हम मुसलमान हैं माशाल्लाह। मुफ्ती साहब तो मुसलमान हैं। यह क्या बात कर रहे हैं? मुफ्ती साहब तो मतलब अहमदिया सब तो मशहूर शख्सियत तो ना दी है। नहीं, वो मुसलमान है मुफ्ती साहब। मुसलमान आप अपना सवाल कर लें ताकि पता चल जाए। मुसलमान कर लें आप सवाल करें, पता लग जाएगा। मुसलमान है तो मैं भी सुन्नी। भाईजान, मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी आजकल इनके ना अब्रॉड में बैठता हूँ अहमदियों के, तो इनको बताने की कोशिश करते हैं। कादियानियों की कहें आप, फिर कादियानियों की कहें। जी, लानती कादियानियों की। हाँ, ठीक। अच्छा, तो उनकी बराड़ पे बैठते हैं, कोई एक दो का नाम लें, किसकी बराड़ पे बैठते हैं? ये नादिर हो गया, दो चार और भी हैं।
ये पाक के नाम पे हैं, वो मसरूर हो गया, ये वो अच्छा सब लोग जी, बैठे करें हैं। सवाल करें आप। तो इनको जब बताते हैं ना, तो मुनादिर लोगों की बारात ने तो पहचान लिया है कि मैं इकबाल हूँ, मतलब अब मैं एक दो फेक आईडी से भी बैठ जाता हूँ, क्वेश्चनिंग करता हूँ, तो ये ना मानते नहीं है, कादियानी को मानते हैं, मिर्ज़ा को। तो मैं बस सुनता रहता हूँ, तो इनको मैं घेरता हूँ आजकल किसी तरीके से। मैं अपने मुंह से जब सवाल शुरू करता हूँ तो मैं इनको बता देता हूँ कि भाई मैं अहमदी हूँ, तो ये क्यों बकवास कर रहा था, मिर्ज़ा साहब ने अगर कोको वाइन पी भी ली है तो इसमें कोई मसला नहीं है, ये वो। तो फिर वो सारे मुझे फॉलो करने लग जाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा बना देते हैं, ऊपर उठाना शुरू कर देते हैं। जब ऊपर उठाना शुरू कर देते हैं तो फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो उनसे मैं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरा ज़ुबान से कहना ये इससे का कोई मतलब कि मैं दायरा इस्लाम से बाहर तो नहीं हो सकता, या हो जाता हूँ, या क्या? भाई दायरा इस्लाम से बाहर या खारज कोई ऐसे नहीं होता, ये कोई पापड़ नहीं है कि बंदा जब जी चाहे ये आपका दीन ईमान टूट जाए। इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। अमाल का दारोमदार नीयतों के ऊपर है और हर शख्स को वो ही मिलता है जिसकी वो नीयत करता है। जब तक आप दिल से ना निकालेंगे अल्लाह रसूल को, उस वक्त तक आप इस्लाम से या ईमान से नहीं निकल सकते। जी बिल्कुल। दिल के अंदर आप जब तक मान रहे हैं, जुबान से या अपने किरदार से आप कुछ भी करें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी जल्दी नहीं फर्क पड़ता। सजा और जजा तो अल्लाह पाक ने देनी है, जन्नत तो अल्लाह पाक ने देनी है। हाँ, मैं सिर्फ अब्रॉड पे बैठ के इसलिए शुरू करने से पहले कहता हूँ कि मैं बताऊँ, और मुझे फिर सुनते बड़े ध्यान से हैं। मैं जरा बात अभी कंप्लीट कर लूँ तो फिर आप जो मर्जी फरमाइएगा, मैंने आपकी सुन ली है जी। ओके। अच्छा, गुजारिश ये है कि अव्वल तो आप गलती कर रहे हैं ना, आप क्यों जाते हैं भाई? जब आपके पास इल्म ही नहीं है तो आप फिर क्यों जाते हैं? और पहले तो आपको ये करना चाहिए कि आप अपना जो दीन ईमान है उसके मुतल्लक तफसीलात हासिल करें, और अपने जो ईमानी मसाइल हैं उनके ऊपर आपको गिरफ्त होनी चाहिए, पता होना चाहिए, नमाज रोज़े का पता होना चाहिए, जो चीज़ें अल्लाह ने फ़र्ज की हैं उनके बारे में तो कम अज़ कम पता हो। ये डिबेट का मरहला पता है कब आता है? जब इंसान को अपने दीन का टोटली पता है कि जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया था उसको पहले वही वो सब पता है। अब ये ज़िमनी चीज़ें आ जाती हैं कि अब भाई मैं इस्लाम का दिफा भी करूँगा, क्योंकि अपने दीन का दिफा तो मैं कर चुका हूँ, मुझे सब पता है। जिस दीन का मैं रुकन हूँ, मुसलमान हूँ, मुझे अपने सारे जो फ़राइज़ है ना उनका इल्म, ये सब कुछ इल्म होने के बाद ज़िमनी तौर पे वो कहता है कि चलो अब मैं तबलीग करता हूँ, तो वो तबलीग के लिए निकलता है। तो वो फिर मुख्तलिफ अपनी जो है ना वो जहाँ पे उसकी तवज्जो ज़्यादा होती है या ज़ौक़ शौक़ होता है वो वाली काम करता है। बसा औक़ात वो रद्दे ईसाइयत करता है या रद्दे इल्हादियत करता है, ये वो शोबा जात है ना मुख्तलिफ, तो उन्हीं शोबा जात में से एक रद्दे कादियानियत है। तो ये ज़िमनी चीज़ें हैं, ये समझ लीजिए कोई आपके ऊपर फ़र्द या वाजिब नहीं है, आप मुकल्लफ नहीं है इस चीज़ के कि अल्लाह ने कोई कब्र में आपसे जाके पूछना है हाँ भाई ख़त्म नबूवत की कोई बराडें लगाई थी कि नहीं, को कादियानियों की बराडों के ऊपर जाके बैठे थे कि नहीं। ये ज़िमनी चीज़ें सब टोटली ज़िमनी। पहले अपने फ़राइज़ को पूरा करने के बाद अगला मरहला शुरू होता है ये डिबेट का। और डिबेट भी उस वक्त नहीं कर सकते जब तक आपको मद्दे मुकाबल की पूरी उसकी ताकत का, उसकी पावर का जब तक अंदाज़ा नहीं होगा, आप अखाड़े में कैसे उतर सकते हैं? अखाड़े में उतरने के लिए अगले पहलवान का आपको पता होना चाहिए कि जो मेरे मद्दे मुकाबल पहलवान है वो उसके कौन कौन से करतब हैं, वो किस तरीके से उसके दाव पेच कौन कौन से हैं, वो सारी मालूमात। अब ये देखें ना, क्रिकेट की जब वो होती है ये जो बनी हुई है हमारी, मुझे तो ये इतना नहीं पता, तो बहरहाल वो जो भी हमारा दायरा है क्रिकेट का, तो वो जब एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ मुकाबला होता है तो इन लोगों को, हमारे खिलाड़ियों को सिखाया जाता है कि अभी देखो है तो
ان کی ٹیم کے اندر یہ بولر ہے اور اس کی بولنگ کا یہ سٹائل ہے، تو اس کو تم نے ایسے ٹیکل کرنا ہے، اور یہ ان کا بیسٹ مین ہے، اس کی یہ کمزوریاں ہیں اور اس طریقے سے یہ کھیلتا ہے، تو وہ سارا پہلے اس کو باور کروایا جاتا ہے آپ کی ٹیم کو۔ یہ صرف ایک کرکٹ کا بتا رہا ہوں، تو ڈیبیٹ کا بھی کچھ اس طریقے سے معاملہ ہے۔ ڈیبیٹ کرنے چلیں یا میرے بھائی جب آپ قادیانیوں سے، تو ان کا کم از کم علم تو ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہے ککھ نہیں، تو پھر یہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بولے بالے جو دوست ہیں جن کو بہت چڑھی ہوتی ہے جناب دین کی خدمت سر پہ، اور ڈیبیٹ چڑھی ہوتی ہے کہ میں بس مردنگوں سے ڈیبیٹ کرنی ہے، وہ پھر نا بعد میں جا کے رولا ڈالنا ہوتا ہے نا، اس نے اپنے یاروں کو اس نے بتانا ہوتا ہے کہ میں بڑی 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 ڈیبیٹیں میں نے کی ہیں، بڑی مناظرے کی ہیں قادیانیوں کے ساتھ، تو وہ اصل میں اس نے بتانا ہوتا ہے۔ تو یہ بتانے کے لیے کم از کم قادیانیوں کی 2-4 برادوں پہ جب تک جائے گا نہیں تو وہ بتا نہیں سکے گا، تو یہ ہے اصل میں پرابلم۔ تو یہ ہے کہ پہلے پوری علم حاصل کیجئے، پورے آپ پڑھیے، اس کے لیے آپ کو پہلے علم خود حاصل کرنا پڑے گا۔ علم حاصل کرنے کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں، کرنا نہ کرنا وہ آپ کی اپنی خوشی ہے، زیادہ نہ کریے آپ۔ قومی اسمبلی کی کارروائی ہے، 5 جلدوں کے اندر مولانا اللہ وسایہ صاحب نے اس کو چھاپا ہے، عالمی مجلس حفظ ختم نبوت والوں نے، نیٹ کے اوپر موجود ہے، بس آپ نے وہ 5 جلدیں پڑھنی ہیں۔ اور دوسری ایک کتاب ہے متین خالد صاحب کی، ثبوت حاضر ہیں، 4 جلدوں کے اوپر ہے، بس وہ آپ نے پڑھنی، 4 جلدیں وہ، 5 جلدیں یہ، آپ کا نصاب مکمل، آپ ایک بہترین ڈیبیٹر بن جائیں گے، کوئی قادیانی کہیں سے بھی سوال کرے آپ جواب دے سکیں گے، اتنی ایبلٹی آپ کے اندر آ جائے گی۔ جی میں نے بات کر لی۔ جی جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب کدھر چلے گئے؟ میں مفتی صاحب آپ کی بات سن رہا ہوں، میں یہیں پر ہوں۔ کسی اور بھائی نے مفتی صاحب سے سوال کرنا ہے تو کریں۔ یہ کوئی دانش شاہ صاحب تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو پہلے کبھی دیکھا دانش شاہ میرا نام ہے جی۔ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ دونوں سپیکر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ہاں مفتی صاحب سے یہ بتائیے پوچھیں کہ یہ 100-150 سال میں اس خبیث کے خلاف کوئی فتویٰ بھی ہے جی ہمارے علماء دین نے دیا جی؟ جیسے کہ کس کے خلاف؟ احمد رشدی، اس کا کیا نام تھا جی خبیث کا، اس کے خلاف کیا تھا؟ میں جواب دوں؟ بالکل بالکل مفتی صاحب جواب آپ ہی دیں۔ میرے بھائی دانش بھائی فتویٰ دیا ہے کہ نہیں؟ فتویٰ پہلے تو یہ سمجھ لے فتویٰ کیا ہوتا ہے۔ فتویٰ یعنی واٹ از دس فتویٰ، اور یہ ہے کیا چیز فتویٰ؟ فتویٰ یہ میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ مائک میوٹ کریں گے تو میں انشاءاللہ جواب دوں گا، انشاءاللہ آپ کی تسلی اور تشفی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ فتویٰ اصل میں ایک عالم دین کی رائے کا نام ہوتا ہے۔ عالم دین وہ اپنی ایک رائے دیتا ہے اور اس کو فتویٰ کہتے ہیں۔ تو اب بیچ میں آواز آ رہی ہے، تو اب یہ دیکھیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالم اسلام کے تمام علماء کرام مرزا قادیانی کو کافر نہیں مانتے؟ بھائی مطلب یہ کہ مرزا قادیانی کے دور کے اندر اور آج تک کوئی لاکھوں کی تعداد میں علماء ہوں گے، تمام مکاتب فکر کے، سنی شیعہ وہابی دیوبندی سب کے اندر ہی لاکھوں کی تعداد میں علماء ہوں گے، تو کیا ان کی رائے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی ایک بھی ایسا ہے کہ جو اس کو جو ہے نا مسلمان سمجھتا تھا؟ یا مطلب تو وہ ٹوٹلی جتنے بھی علماء آئے نا وہ سب کے فتاوی ہی ہیں، وہ ان کا قول بھی فتوی ہے، ان کا کردار بھی فتوی ہے۔ ایک عالم دین کا قول و فعل جو ہے نا وہ فتوی ہی ہوتا ہے،
ہاں جی، کیونکہ وہ اس کی اپنی رائے ہوتی ہے نا، وہ اپنی رائے کا اظہار کبھی اپنے کردار کے ذریعے کرتا ہے، کبھی اپنے قول کے ذریعے کرتا ہے، کبھی تحریر کے ذریعے کر دیتا ہے، وہ ایک کاغذ کے اوپر لکھ دیتا ہے بس. تو یہ علماء، ایک عالم دین کی جو کتاب ہوتی ہے وہ بھی ایک فتویٰ ہی ہوتا ہے، وہ ایک فتویٰ ہی ہوتا ہے. تو امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. رہی بات باقاعدہ طور کے دارالافتاء کے فتاویٰ، وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں، کوئی ایک نہیں، ایک دو نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں. جی میرے بھائی دانش بھائی. جی بولیے، کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی میرے بھائی؟ مائک میوٹ ہے، لگتا ہے ناراض ہو گئے ہیں. جی جی نہیں آگے جی، میں سن رہا تھا آپ کو. بہت بہت شکریہ آپ کا جی. ہم تو طالب علم ہے جی، آپ سے سیکھتے رہتے ہیں مفتی صاحب. جزاک اللہ، جزاک. اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ قادیانی کہتے ہیں جی مرزا قادیانی کے اوپر یا قادیانیوں کے اوپر 1974 کی اسمبلی نے ان کو کافر بنایا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. کافر جو ہوتا ہے نا، کافر وہ اپنے قول و فعل کی وجہ سے کافر ہوتا ہے. اور جب وہ اپنا قول اور فعل کفر والا کرتا ہے نا، اسی وقت ہی کافر ہو جاتا ہے. بالفرض ایک شخص ہے، اس نے جنوری کی 1 جنوری کو ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے کفر کیا، کوئی بندہ نہیں سن رہا تھا، اس نے اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کے رسول کا انکار کر دیا کمرے میں بیٹھ کے، تو وہ اسی ٹائم ہی کافر ہو گیا. لیکن اس چیز کا پتہ لوگوں کو چلا، وہ جناب کوئی 2 سال بعد پتہ چلا کہ اس نے 2 سال پہلے کمرے کے اندر بیٹھ کے یہ. تو مجھے بتائیے کہ کیا یہ 2 سال بعد کافر ہوا کہ اسی دن کافر ہو گیا تھا؟ کیا مطلب اس کے اوپر کوئی کیس چلتا ہے تو وہ 2 سال بعد اس کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے، تو کیا وہ یہ کہا جائے گا کہ اسمبلی نے اس کو کافر بنایا ہے؟ ایسا نہیں ہے. مرزا قادیانی نے جب یہ بکواسیات کی تھی اسی ٹائم ہی کافر ہو گیا تھا. کوئی فتویٰ دے مفتی نہ دے، کوئی عدالت فیصلہ کرے یا نہ کرے، کافر تو اسی ٹائم تھا وہ. ہاں ڈکلیئر کافر اس ٹائم ہوا کہ جب مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے کفر کا فتویٰ دیا تھا. ہاں ڈکلیئرڈ کافر اس ٹائم ہوا ہے، اور قومی اسمبلی یعنی قانونی طور پہ 1974 کی اسمبلی کے اندر کافر ہوا. سمجھے کہ نہیں؟ ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح ہو گیا. نہیں میں تو یہ سوچ رہا تھا نا، یہ جو خبیث رشدی تھا، اس کے خلاف ایران کے مولانا صاحب نے ایک فتویٰ دیا تھا، بلکہ $1 ملین کا جو اس کو مارنا تھا اس کا ایک انعام بھی رکھا گیا تھا. اس خبیث کو چھوڑا گیا جی لاسٹ 100 ایئر. شکریہ آپ کا بہت بہت. جی وہ سلیمان رشدی جو ہے نا وہ ایک الگ شخصیت ہے. مرزا غلام قادیانی قادیان کا رشدی ایک الگ ہے. دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. ہم ابھی قادیانیوں کی بات کر رہے ہیں اور مرزا قادیانی کی بات کر رہے ہیں، سلیمان رشدی کی نہیں کر رہے، جس نے وہ شیطانی آیات کتاب لکھی تھی اور جس کے سر کی قیمت سب سے پہلے امام خمینی نے رکھی تھی. ٹھیک ہے، وہ سلیمان رشدی الگ ہے، مرزا غلام قادیانی الگ ہے. جی ہے تو دونوں خبیث ہیں. ہاں جی، دونوں ہی خبیث ہیں. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا. یہ جو ہے نا میں نے آپ کو دکھایا، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا فتاویٰ لگے ہوئے. یہ دانش صاحب میں نے آپ کے لیے لگائے ہیں. یہ کتاب کا نام ہے فتنہ قادیانیت اور ملت اسلامیہ کا موقف. یہ قادیانیوں نے ایک محضر نامہ جمع کروایا تھا قومی اسمبلی میں. یہ اس کا جواب لکھ کر دیا تھا مولانا تقی عثمانی اور 2 اور علماء خٹک صاحب اور بنوری صاحب نے، 3 علماء دین نے. یہ 1 ہفتے کے اندر کتاب لکھی. یہ 250 صفحے کی ہے. اس کا نام ہے فتنہ قادیانیت اور ملت اسلامیہ کا موقف.
عالم جی اسلام کا فیصلہ، اس میں کچھ فتاوا جات درج ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سب فتاوا جات ہیں 1 2 3 4 کر کے نا، کہ جو بڑے بڑے علماء ڈاکٹر نے صاحب دیے ہیں۔ اتنی اردو تو ہماری اچھی نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ سے سیکھتے رہتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ ہاں جی، تو یہ آپ چاہیں تو یہ کتاب آپ انٹرنیٹ پر جو ہے نا انٹرنیٹ آرکائیو پر ہے، آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، بہت بہت شکریہ جی۔ مجھے تو قادیانی کے متعلق کچھ پتہ نہیں تھا، آپ سے سیکھا ہے جی، آپ کی براڈ دیکھ رہے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ تعالیٰ جزاک دے۔ مفتی صاحب، آپ نے یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے فتنہ قادیانیت اور امت مسلمہ کا موقف؟ جی 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 ہاں، یہ ان کے محضر نامے کے جواب میں دی گئی تھی، یہ جی، اتنا محضر نہ ہاں جی، یہ بڑا شور ڈالتے ہیں کہ جی ہمارے محضر نامے کا جواب نہیں دیا، حالانکہ اس کا جواب 250، ان کا محضر نامہ 176 صفحے کا تھا، یہ کتاب 287 صفحے کی ہے۔ قادیانیت ہے ہی کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، ہاں جی، کسی ایک چیز پر بات نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے۔ اسی محضر نامے کے یہ جو چیلنج کرتے ہیں، آج آ جائے کوئی، ابھی آ جائے کوئی قادیانی، اس کے ایک صفحے پہ بات کرے، آ جائے پہلے صفحے کے سے بات کرنی شروع کر دو، آ جاؤ۔ ہاں، نہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو ان لوگوں سے بات کچھ بھی کرتے ہیں نہیں ہے، جنہیں علم ہے۔ قادیانیت ہے ہی کچھ نہیں، کھے آتا جاتا کچھ بھی نہیں۔ دھوکہ بازی وہ بھی گھٹیا قسم کی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز بڑی کم ہو گئی ہے۔ نہیں، اچھا، میں نے اگلی کہا بات کہ یہ ہے کہ اگر دھوکہ اتنا بازی کچھ اتنے جواب آتے ہوتے تو مرزا ناصر نہ دیتا، عبد المنان عمر نہ دیتا جواب، ٹھیک ان کو تو آیا ہی کچھ نہیں، بالکل ٹھیک۔ اسمبلی کے اندر گھو بنے ہوئے تھے۔ نہیں، مرزا ناصر نے السلام فضول علیکم باتیں بھائی جان۔ بہت کی، سوال کا جواب نہیں دیتا تھا۔ وہی نا، سوال کا جواب دیا ہی کچھ نہیں۔ ہاں، وہ تو السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم پارٹی السلام۔ آئی ہے۔ جی، آپ کون ہیں بھائی؟ میں اچھا، سب سے پہلے شاہ صاحب اس سے پہلے نا ایک عرض کرنی کینی ہے صاحب کہ یہ جو ایک منٹ ذرا، یہ کوئی کالر آئے ہیں، کین صاحب ایک جی کریں جی، کون ہے؟ جی السلام علیکم بھائی جان، کیسے ہیں آپ سب؟ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، میں نے ڈاکٹر سید صاحب کو اور مفتی مبشر شاہ صاحب آپ کو بہت شکریہ، اور ایک مسلمان امت کا جوان جو بھی آپ کے ٹھیک ہے جوان بیٹا ٹھیک ہے ہوتے ہیں ناطے میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کیا ہوا ہے جوان بیٹے کو؟ سمجھ نہیں آئی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ امت مسلمہ کا جوان لڑکا ہوتے ہوئے میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ مرزائی لعنت اور ان کافروں کو بے نقاب کرتے ہیں، میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ جی شکریہ جی، کیانی صاحب فرمائیں جناب، وہ شکریہ ہی ادا کرنے آئے تھے۔ کیانی صاحب اب آپ بول رہے ہیں۔ جی قبلہ، وہ جو اپنا خط قبلہ شاہ صاحب نے وہ دریافت کیا ہے کہ وہ جو اس کے پیشوا جو تھا مرزا امام الدین، تو یہ مرزا یہ غلام سدی قادیانی اس کا مرید تھا اس سے پہلے، حالانکہ 1903 تک کا ذکر اس ہے۔ کا مرید تھا، سمجھ نہیں آئی ڈاکٹر کیانی یہ صاحب۔ مرزا امام الدین کا کون؟ بالبکی، جی یہ غلام سدی۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی، کیا وہ امام دین تو پیشوا تھا نا چوڑوں کا، تو کہتے ہیں کیا مرزا قادیانی امام دین کا مرید تھا شروع میں؟ مرید کا تو مجھے پتا نہیں، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ یہ اس کو بچپن کے اندر لے گیا تھا ورگلا کے، اور ان کی کتابیں بتا رہی ہیں کہ یہ نہ ادھر تھیٹر دیکھتا رہا، اور کوئی مجھے لگتا ہے میری سکس سینس کہتی ہے کہ اس نے گیم بھی ڈالی ہوگی، لازمی مرزے کا، اسی لیے تو وہ شرم کے مارے گھر نہیں آیا۔ تو مجھے لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب آپ اس کے اوپر کیا فرماتے ہیں؟ نہیں مفتی صاحب، یہ جب پینشن چوری اور سنیما دیکھنے کا واقعہ ہے، یہ پینشن چوری 1861 کا واقعہ ہے، ستمبر کے مہینے کا، تو اس وقت اس کی عمر ہمارے مطابق کوئی 22 برس بنتی ہے، اور قادیانیوں کے مطابق 27 برس بنتی ہے۔ تو دیکھیں 22 یا 27 برس کا تو بالغ ہوتا ہے، بچہ تو ہوتا ہی نہیں ہے۔
हाँ। ये एक ऐसा नहीं जाली वही नहीं, हम ये आप अपनी तरह मंसूबना ना करें कि मैं मेरे मुताबिक 22 साल नहीं, आप कहें मिर्ज़े कादियानी के मुताबिक 22 हाँ, साल। मिर्ज़े कादियानी के मुताबिक 22 साल, बिल्कुल सही है आपने कहा। हाँ, तो मिर्ज़े कादियानी के मुताबिक 22 साल, तो 22 साल तो पप्पू बच्चा होता है। अच्छा हाँ जी ले। नहीं, 18 साल का बालिग हो जाता है मुफ्ती साहब कानून के हिसाब मैं से। नवा मिर्ज़ा कादियानी बचपन च तुहानू पता है पप्पू सी बड़ा वावा ओला ओला। इमाम दीन ने सही जनाब उसके साथ साहब किया, तो ये शर्म के मारे बेचारा घर ही नहीं आया। हाँ जी मुफ्ती साहब ये तो गंद सी के कर रहे हो तुसी, एडा सोना करी आपने। वो मेरा सवाल उधर ही रह गया। मेरा कहने का मकसद ये है कि वो जब आप चेक करें ना, होली स्पिरिचुअल लीडर ऑफ स्वीपर था मिर्जा इमामुद्दीन, तो मिर्जा गुलाम सुद्दी भी होली यानी कि स्पिरिचुअल लीडर था स्वीपर्स का कि नहीं था? मुरीद था जी, कैनी साहब वो उसका मुरीद था। सॉरी कैनी साहब वो मुरीद था, क्योंकि जो खत है, खत में वो तड़ी लगा रहा है कि तुम्हें जो है उसके जो मजरवाड़े का जो बंगियों का है उससे तुम्हें खारिज करा दिया जाएगा। तो ये मुरीद था उस वक्त इमामुद्दीन। काकाश भाई मुफ्ती साहब नो खत दिखाओ। ये जरा खत पढ़े जी, ये खत जरा पढ़े, इसको क्या लिखा हुआ है? मुफ्ती साहब ये मुझे मिर्ज़ाइयों से मिला है, ये मिर्ज़ा कादियानी के ख़ानदान में मौजूद था। अगर अब नहीं है तो मुझे उनमें से किसी ने ये दिया है, कार्ड है। अंदाजा लगाए, बहुत जबरदस्त। मुफ्ती साहब मसीता बेग को जानते हैं? नाम सुना को? हाँ जी मसीता। ये मसीता ने मिर्ज़ा कादियानी को लिखा था खत। हाँ अच्छा। हाँ, ये बड़ा मतलब कमाल का खत है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट दे, मैं लगा इसको पढ़ता हूँ। डॉक्टर साहब उसने कहा है कि मुसले का डोंग ना नचाए। हाँ नहीं, मुफ्ती साहब जो है ना वो बड़े सॉलिड रेफरेंस पर बात करते हैं, और बात भी सॉलिड रेफरेंस पर ही करनी चाहिए। तो मैं आपको वो खैर दिखाता हूँ। मुफ्ती साहब देखें ज़रा, ये इसके 2 रुख हैं इस कार्ड के। पहला रुख मैं आपको, काकस भाई है आपका इसका फ्रंट पेज जो आपके पास? हाँ ये है जी, फ्रंट मुझे मिल गया। ये देखें मुफ्ती साहब, नज़र आया? हाँ जी ये जी इसका ड्रेस वाली साइड है। ये कार्ड जो है ना, इसकी तस्दीक है कि ये इसी दौर का कार्ड है जिस दौर में मिर्ज़ा कादियानी था। आप देखें, आप इस प्रोग्राम पर ना चीज़ को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। अच्छा ये कहाँ से मिला थोड़ा सा? ये जिसने मुझे दिया है मैं उसका आपको बता नहीं सकता। वो मिर्ज़ा ख़ानदान का एक शख्स है जिसने मुझे ये कार्ड दिया है, और मेरे कब्ज़े में है ये कार्ड। ये इसका ये क्या लिखा है, कोई पढ़ के सुनाए कोई? हाँ यहाँ लिखा हुआ है। मैं पढ़ता हूँ। नहीं पर बताए ना, ये मुफ्ती साहब मैं आपको ऊपर छपी हुई चीज़ बता दूं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में, ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में ये छपा है कार्ड, लिखा हुआ है ईस्ट इंडिया पोस्ट कार्ड। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो है दरमियान में। ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में कायम हुई और 1875 में बंद कर दी मलका विक्टोरिया ने। नीचे दाएं हाथ पर ये क्वार्टर आना होता था, उसकी स्टैंप लगी हुई है। उस स्टैंप के ऊपर चंबा स्टेट, आपने सुना है ना, पंजाब में एक स्टेट का नाम चंबा स्टेट था, उसकी मोहर लगी हुई है। जैसे नहीं टिकट पर डाकखाना मोहर लगा देता, वैसे आपको चंबा स्टेट की मोहर नज़र आएगी। नीचे चंबा स्टेट का झंडा है और नीचे एक मध्यम सी तारीख लिखी है 14 जून 1864। तो ये सारी चीज़ें जो है ना तारीख के हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त हैं। विकीपीडिया भी इसकी तस्दीक करता है। अब हाथ से लिखा हुआ है मिर्ज़ा गुलाम सोंदी, गुलाम अहमद नहीं लिखा हुआ। ये 1864 में लिखा है। वाह भाई वाह। मिर्ज़ा गुलाम सोंदी। और आपको पता है ना, सफ़ा नंबर 41 सीरतुल महदी हिस्सा अव्वल कहानी नंबर 51 में वो जो आयना से उसने, सिंधी नहीं है वो सोंदी है। हाँ, वो बड़ी बूढ़ियों ने कहा सोंदी चिड़ियाँ पकड़ा करता था।
डॉक्टर साहब ये कार्ड मुझे भी कोई व्हाट्सएप पे करें जरा। जी 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 मैं आपको भेज दूंगा। हाँ जी मेरे पास है। नीचे लिखा है आफिस अर्दली, यानी उसका उसने लिखा है कि ये अर्दली है, ऑफिस अर्दली, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट, पंजाब। ठीक, यहाँ पर बाएं हाथ पर उसने उर्दू में लिखा है कोई मुझे असली अफ्यून अरसाल करे। अच्छा वो तेरी क्या अब जरा दूसरी तरफ ले आए। हाँ नहीं दूसरी तरफ थे मुफ्ती साहब, आप पढ़ के नहीं दूसरी तरफ जाते पूछो ही कुछ ना। डॉक्टर साहब दूसरी तरफ ना इनका पूरा मतलब लिखा है। डॉक्टर साहब दो चीज़ां ते इत्थे सबूत हो गईयां ने। एक ते ਇਹ ਕਿ 1864 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। हाँ बिल्कुल नहीं था। दूसरी गल ਜਿਹੜੀ 2021 ਚ ਛਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ मुफ्ती साहब मसीता दे दस्तखत देखो। हाँ ये वही मसीता ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਸੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਨੇ। नहीं ना मैनू नहीं सी मिलिया। अच्छा आज भेज देने मुफ्ती मैं खान साहब ने भेज। नहीं मुफ्ती साहब ये सुने कार्ड पर लिखा क्या हुआ है। अब चम्मी का मतलब मुझे नहीं आता, ये मुझे लगता है चुम्मी है चुम्मी। हाँ चुम्मी गुलाम सुंदी, गुलाम अहमद नहीं लिखा उसने। चुम्मी गुलाम सुंदी, बाल्मिक शाफी, बाल्मिक काफी, बाल्मिक माफी। अच्छा ये कलमा है ना बाल्मिक लोगों का, लाल बेगियों का। आपने वो दीदे हक पढ़ ली हुई है ना? दीदे हक, हाँ जी वहाँ ये लिखा हुआ है। हाँ अच्छा कहता है चुम्मी गुलाम सोंदी, बाल्मिक शाफी, बाल्मिक काफी, बाल्मिक माफी। अच्छा ठीक है। कहता है भेजी गई अफ्यून से यक पाओ अफ्यून खालिस जल्द भिजवा दी जावे। बल्ले हो तेरे पूरी पाफ ही मंगदा है। हाँ ऐसे कोई मजून खांदा है पिया। नहीं सोचो मिर्दे ने कितने किलो मंगाई होएगी। अच्छा हाँ ये आप मजीद बरा कहना मजीद बरा पेशवा इमाम दीन का संदेशा पल्ले बांधो। अच्छा हाँ और अपने दीन पर रहो, मुसला होने का फ्रेब ना करो। अच्छा काफिर ना बनो, वरना मुरीद से खारिज किए ना जाओ। हाँ अच्छा है नीचे मुझे लगता है उसने लिखा है बाल्मिक साथी मसीता। हाँ वैसे बड़ी गल है तुसी तहरीर पढ़ ली है। नहीं बड़ी देर लगी हमें पढ़ने में, अभी भी एक्यूरेसी में थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन बड़ी कोशिश के बाद पढ़ी है हमने। मुफ्ती साहब 2 हफ्ते लगे जी तो पता है क्या ये हकीकत है मर्जियों का दियानियों की, ये उनकी हकीकत है। ये सब लोग बाल्मिक और ये सब चूड़ा बंगी ये वो लोग हैं ना। नहीं देखें मुफ्ती साहब आज भी मैं एक अर्ज करूं, पहली बात तो जब मुझे कार्ड मिला मुझे मसीते का नहीं पता था। अब मुझे पता है इनकी किताबों में मसीता बेग है जो गुलाम मुर्तज़ा का कज़न था और उसका कारोबारी पार्टनर भी था। उसके बारे में हमें सही मालूमात है और इनकी सीरतुल महदी में 2 वाक़यात मसीते के दर्ज हैं। तो आदमी मसीता मौजूद है। दूसरी बात कि ये इस बात की तस्दीक करता है कि इसका नाम 1864 तक गुलाम अहमद नहीं था, गुलाम सुंदी था। मैंने कादियानियों से कहा कि आप 1861 से पहले अगर मुझे मिर्ज़े कादियानी की एक डॉक्यूमेंट ले आएँ जहाँ इसका नाम गुलाम अहमद लिखा हो तो मैं उन्हें इनाम दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है ही नहीं, नियामत नहीं है जी। इसने अब मैं 2 काफरों की कहानी में सफ़ा नंबर 12 पर इमाम दीन लिखता है कि जब मिर्ज़ा गुलाम कादियानी सियालकोट फरार करवाया इसके बाप गुलाम मुर्तज़ा ने,
बिशप रेवरेंड बटलर के पास, तो इसने सियालकोट जाकर 2 काम किए। आपको इस बात का तो पता है ना कि जब चाय के डिपो पर डाका डाला था तो इमामदीन गिरफ्तार हो गया था, ठीक है। और जब इमामदीन को अदालत में पेश किया तो जज ने इमामदीन को ये कह के रहा कर दिया कि सबूत और शवाहिद हैं कि डाका गुलाम कादियानी ने डाला, इमामदीन ने नहीं डाला। उसको छोड़ दिया उसने, और पुलिस को ने वारंट जारी कर दिए गुलाम कादियानी के। गुलाम मुर्तज़ा को किसी ने बताया, उसने इसको बुलवाया और कादियान के अंदर नहीं दाखिल होने दिया, माँ से नहीं मिलने दिया, और डंडों से इतना मारा, फिर रेड़े पर डाल के कहा कि इसको छोड़ के आओ कि सियालकोट चला जाए। वो वारंट थे ना गुलाम सुंदी के क्या चीज? जो वारंट थे ना गुलाम सुंदी के, हाँ, थे ना? वो वारंट गुलाम सुंदी के नाम है मुफ्ती साहब, बिल्कुल, गुलाम अहमद के नाम नहीं है। ये बात उसने 2 काफरों की कहानी में लिखी है। कहता है इसने सियालकोट फरार होके 2 काम किए। अपना नाम गुलाम सुंदी से बदलकर गुलाम अहमद रख लिया, क्योंकि गुलाम सुंदी तो बाल्मीक था। कहता है पुलिस तो बाल्मीक को ढूंढ रही थी, इसने अपना नाम बदल के मुसलमान होने का, आपने देखा ना इसमें भी लिखा है मुसला होने का फरेब ना करो, इसने मुसलमान होने का ढोंग रचाया। और सारा वक्त, अब अल हकम अखबार का मैंने पहले भी आपको हवाला बताया था, मुंह पर कपड़ा लेके फिरता था, और जब अपने कमरे में दाखिल होता था तो हाथ पीछे करके कुंडी लगाता था, कोई चेहरा ना देख ले। तो ये बात बड़ी 2 काफिरों की कहानी में इसका नाम लेकर इमामदीन ने ये बात लिखी है। तो आप क्या कहते हैं इस तहरीर पर मुफ्ती साहब? डॉक्टर साहब वो सो गया है, मुफ्ती साहब फिर सो गए, मुर्तजा साहब सो गए, मुर्तजा साहब ने म्यूट ला। अच्छा ठीक हो, खराटे मारने शुरू कर छड़े। अल्लाह अकबर। अच्छा डॉक्टर साहब, मसीता जिहड़ा सी जी, ਇਹਦਾ असली नाम कोई पता होवे? मसीता बेग। मसीता बेग, हाँ, सीरतुल महदी में पूरा नाम लिखा हुआ है मसीता बेग। वो छप्पड़ नहीं गिरा था, छप्पड़ की छत गिर गई थी, हाँ, वही मौजा जेड़ा मिर्जा कहंदा है कि मैनू इल्हाम होया कि छत डिगन वाली है। हाँ, मसीता बेग को आवाज दी कि मुझे खदशा है कि छत गिरने वाली हाँ, है। सही बात जी 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 जी, ये वही मसीता है। अच्छा अच्छा, ये वही मसीता है, ठीक हो। हाँ जी। ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਲਾਲ ਬੇਗੀ ਸੀ 1861 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ 64 ਚ ਇਹ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸੌਰੀ 61 ਚ 62 ਚ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਲਾਮ ਸੋਂਦੀ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਸੇ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਸੁੰਦੀ ਤੇ ਦਸਬੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਮਝਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖੋ, ਔਰ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ, ਅਸਲ ਜ਼ੁਬਾਨਦਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਉਂ ਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ, ਤੇ ਖਾਲਸ ਉਰਦੂ ਅਗਰ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੋ। ਇੰਝ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਜੇ, ਇੰਝ ਹੀ ਦੀਗਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਸ਼ਤੋ ਵੀ ਅਗਰ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਖਾਲਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਨਬੀ ਬਣਨ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ
ਮਲਕਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਗੁਲਾਮੇ ਅਹਿਮਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। आप देखें मुफ्ती साहब, ये 864 नंबर कहानी देखें इनकी, वहाँ भी इसका ये सुंदी लिखा हुआ है। कहता है खाकसार अर्ज़ करता है कि हिस्सा अव्वल तबा दोम की रवायत नंबर 51 में लफ्ज़ सुंदी के मुतल्लिक़ एक मुफस्सल नोट गुजर चुका है जो काबिल मुलाहिज़ा है, जहाँ ये बताया गया है कि हिंदी में सुंदी के मैंने जोड़ा पैदा करने वाले के हैं, और बिल्कुल गलत है। 51 नंबर कहानी में ऐसी कोई बात नहीं कि जोड़वा है या जोड़ा पैदा करने वाले। वहाँ तो कहता है कि दरगाह पर जब किसी की 10 बार मन्नत मानी जाए तो उसे 10 बंदी कहते थे, और 10 बंदी से बिगड़ते हुए सुंदी बन गया। ये इतने झूठे हैं। देखें, कह रहा है कि वहाँ पर ये लिखा, वहाँ पर ये नहीं लिखा, ये इसने दूसरी तावील पेश की है सुंदी की। अब बात यह है कि इनकी किताबों में मलफूजात में भी एक जगह इसका नाम सुंदी मिलता है हमें, तो बार बार इन्होंने उसका नाम सुंदी लिखा है। और जब हम कहते हैं कि इसका नाम वाकई सुंदी था तो फिर हमारे अपने भाई शुरू हो जाते हैं कि भाई की कह रहे हैं सानू, वो कहते हैं जी ये सारा फ्रॉड है, कार्ड ही फ्रॉड है। हाँ नहीं, अपने भरा को केड़ा कहंदा है आबिद साहब मैं कहता हूँ जी, मैं नहीं डरता। आबिद साहब कहते हैं जी। कौन? आबिद भाई मलेशिया वाले। अच्छा आबिद, अच्छा आप देखें ना अल बदर देखें, अपना अल बदर देखें ना जी 1903 का, उसमें क्या लिखा हुआ है कि फिर भी वो कहते हैं कि ये इमाम दीन के जो मुरीद है ना, जो चूड़ा था। हाँ, उसका तारीख बताएं वो अखबार की, अल बदर की। ये 20 जून है। 20 जून कौन सा सन, कौन सा जी? 1903। मैं अभी निकाल लेता हूँ, 20 जून 1903। यानी साहब कौन सा वाला, क्या मुझे बताएं, मेरी तवज्जो कहीं और थी। ये अल बदर अखबार में लिखा है कि ये चूड़ा था। अच्छा चूड़ा, अच्छा। वो भी तो लिखा है ना जी कि कितना ही अच्छा है कि हम मरज़ई से, चूड़ों से मरज़ई हो गए, और कितनी फख्र की बात जी। नहीं तो मुफ्ती साहब वो तो जो है रूहानी खजाइन जिल्द 15 पेज 279 और का आखिरी लाइन और 280 का पूरी 5 लाइनें में इसने सारी अपनी कहानी लिख दी है कि हम चूड़ा खानदान से, हमारी दादी जो है उनके कचरा उठा के फेंका करते थे। और एक दो दफा ये हवाला वो राव साहब, ये खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा किताब है, सफ़ा 263 है, जिल्द 2 में। हम मिर्जा साहब को मानकर चूड़ों से मिर्जा हो गए, लोग हमें मरज़ई कहते हैं। ये कितना बड़ा फायदा है जो हमें हासिल हुआ। मुफ्ती साहब दोबारा किताब का नाम बताएं। खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा, सफ़ा 263। ये किसकी लिखी हुई है? ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कादियानियों की तो नहीं लगती। नहीं, कादियानियों है तो कादियानियों की है। अच्छा, राइटर का बता देता हूँ। अच्छा, खिलाफत आप गूगल भी दिखा सकते हैं डायरेक्ट मुफ्ती साहब इस स्टूडियो पर। ये देखें मैं डायरेक्ट यार है ना, तुसी पता नहीं हुन सानू ऐ सिखाना है कि नहीं सिखाना। नहीं तन तो बंदा मिल गया, वो आईटी वाला आदमी है जो वो ये खिलाफत अला मिनहाज नबुवा, ये खलीफा ज़ानी की किताब है जी। अच्छा, ये देखें मैं अल बदर अखबार निकालने लगा हूँ। मैंने कहा आपके सामने निकालें, आपको पता है यहाँ से कैसे करना पड़ता है। अल बदर अखबार मुझे बताएं, मेरे पास रखे हैं, कौन सा निकाल? अल बदर अभी इन्होंने बताया 20 जून 1903। हवाला बताएं, हवाला क्या है? हवाला वो जो चूड़ो वाला है जी। क्या निसाब पीछे चले गए?
हाँ जी कि ये चूड़ा था, मिर्जा चूड़ा है ये वाला जो अच्छा शायद आपने पढ़ा है ना, हाँ मनाजिल नबूवा का जो 263 पे आपने पढ़ा, ये मेरे ख्याल यही यही होगा है। यही होगा चूड़ा। हाँ, यही होगा, जो इस अल्फाज जो लग रहे हैं वो यही लग रहे हैं। जी 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 जी। हम मिर्जा को मानकर चूड़ों से मिर्जा हो गए, लोग हमें मरजई मरजई कहते हैं। ये कितना बड़ा फायदा है जो हमें हासिल हुआ। हाँ जी, ये देखें, ये मैंने इनकी वेबसाइट से भी निकाल लिया है। तो यहाँ पर 1903 का अब निकालना है, 1903 जून का, जून की 20 जून का। हाँ जी, आपने बताया 20 जून है जी, 20 जून 30 या 20। 1903 20 हाँ जी 20 जून 1903। तो लेकिन यहाँ तो 20 जून 1957 से पीछे जाता ही नहीं है ये। 1903 है सर। 1903 है नहीं ना भाई इनकी वेबसाइट पर। मुफ्ती साहब के पास होगा। मेरे पास है, इधर खोल लिया है जरा, वो ना पढ़ना पैना है और इन्ना बड़ा 8 सफ़े ने। नहीं, ये वो सफ़ा नंबर बताएंगे ना आपको क्यानी साहब। क्यानी साहब पीछे चले गए। क्यानी साहब कौन? और सफ़ा नंबर देखन गए ने। यहाँ पर 1903 का है नहीं। 12 जून 20 जून 19 जून है जी आखिरी। हाँ बस 19 जून के बाद 26 जून आ जाता है। 19 ही होगा जी, ये वीकली था ना, 19 ही होगा सर, 19। हाँ 19 जून है। इनकी वेबसाइट पर क्यों नहीं है? ये डॉक्टर साहब उधर आर्काइव पर मिलेगा। आप कैसे जाते हैं आर्काइव पर? ये सॉरी आर्काइव नहीं, ये वो IL.com है ना, ILORG यानी लोरियों की, वो उधर मिलेगा। सॉरी अच्छा उधर मिलेगा, सॉरी। अच्छा उसके अंदर मैगजीन के अंदर जाके बदर में जाके आपको मिल जाएगा। चलें उधर देख लेते हैं। चलो कैनी साहब चले गए। अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो जिल्द 15 का जो है ना, पेज 279, उसकी कहानी वो भी बड़े मजे की लिखी हुई है। जिल्द 15 पेज 279 की आखिरी लाइन और 280 की 4 पहली लाइनें बड़े मजे की, आप पढ़ के सुनाएं। और ये शैतानी खजाइन दी। हाँ जी, शैतानी खजाइन। मुफ्ती साहब किधर है? ये मैंने वेबसाइट खोली है, कहाँ पर? इधर नुक्कर च खब्बे हथ देखो मैगजीन होएगा लिखिया, मैगजीन। इधर इत्थे थल्ले किते देखो मैगजीन लिखिया होएगा। अच्छा जाओ थल्ले मैगजीन लिखिया होएगा। नहीं, ये तो बस इतनी है जितनी आपको इतने पूरे सफे थे, कितने मैगजीन नहीं लिखिया? नहीं। अच्छा एक मिनट जरा मैं फिर खोल लूँ। मैं मैगजीन तलाश कर लेता हूँ सर्च बॉक्स में। नहीं जनाब, मैगजीन बिल्कुल मेरे पास तो यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है। अच्छा हाँ फिर पता नहीं, मैं एक मिनट। मैगजीन यहाँ पर उनकी सर्च बार में यहाँ पर लिख ले मैगजीन। मैंने लिखा है, वो भी नहीं निकला। बल्कि सॉरी 1 2 3 4 ये चौथे नंबर पे है, ये नजर आ रहा है। ये उल्टे हाथ पे नीचे से चौथे नंबर पे, नीचे से चौथे नंबर पे। हाँ जी, मिल गया। सॉरी, मेरी आँखां दी खराबी है। ये मैगजीन चौथे ਇਹਦੇ ਤੇ क्लिक करो ना, ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਦਰ ਉੱਤੇ आ गया जी। अच्छा, बदर, रिसाला, नूर, हक, डिग्रेडेड, स्पिरिचुअल नोट्स। अच्छा, इंग्लिश में अल बदर होएगा। एक मिनट, थल्ले उर्दू च जाओ, थल्ले जाओ, सब तो थल्ले उर्दू दे च बदर पे आज। हाँ जी, ये बदर पड़ा, ये बदर। अब इसके शुमारे किधर है?
और उड़ा ते नहीं ने दिते किधरे, है भी खोचल ही ने। ओले उन्होंने डॉक्टर साहब तुम्हारी किस्मत अच्छा है ही उन्होंने डा ही दिता सब कुछ। इंज करो WhatsApp ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸਾਬਕਾ ਸਾਰੇ शुमारे। नहीं नहीं बस वो जून 1903 का कर दें क्योंकि आओ ना WhatsApp करोगे ना तो मैं सेंड करना। हाँ मैं अभी WhatsApp करता हूँ आपको। करो ताकि मैं हुने ही चूंकि फाइल खोली है ते हुने ही सेंड कर दिए। लेकिन रोला विच है ना डॉक्टर साहब वो पूरा पढ़ना पैना 8-10 सफ़े 10 सफ़े। नहीं वो कियानी साहब फिर भी आ जाएंगे, वो आते रहते हैं, उनसे पूछ लेंगे। चलो कियानी साहब चले गए जी। अभी वो मुफ्ती साहब वो रूहानी खजान जिल्द 15 पेज 279 की आखिरी लाइन और असल दे विच डॉक्टर साहब नु कहो ना किताबां इना ए बहा सकदे ने। डॉक्टर साहब खोलो, डॉक्टर साहब खोले, आप खोले, कौन मुफ्ती सी? साहब पढ़ के सुनाएंगे। रूहानी खजान जिल्द 15 एक मिनट मुझे उसमें जाने दें, जिल्द 15 में 279। नहीं एक मिनट पहले जिल्द 15 से आ जाए ना। हाँ जी ये आ गई जिल्द 15 खोल ली, ये नजर आप आई लगाए आपको? ऐसे आप मजा आया। हाँ अभी दूसरी ये बदल को खत्म कर देना, बदल लगा हुआ अभी तो। नहीं वो चले गया। जिल्द 15 और सफ़ा नंबर 279। अच्छा आपने वो चूड़ों वाली है। हाँ जी वो हाँ तो जी, मुफ्ती वही, साहब वही। ने बहुत दफ़ा पढ़ी हुई है, मुफ्ती साहब का तो वो नहीं पढ़ा तो हुआ है, लेकिन सुनाए ना एक दफा पता लग जाए कि वाकई ये सोंदी जो है भंगी था। मसलन एक शख्स जो कौम का चूड़ा यानी भंगी है और एक गांव के शरीफ मुसलमानों के 30-40 साल से ये खिदमत करता है, 2 वक्त इनके घरों की गंदी नालियों को साफ करने आता है और इनके पखानों की निजात डराता है, और 1-2 दफ़ा चोरी में भी पकड़ा गया है और चंद दफ़ा जना में भी गिरफ्तार होकर इसके रसवाई हो चुकी है और चंद साल जेल खाना में कैद भी रह चुका है, और चंद दफ़ा ऐसे बुरे कामों पर गांव के नंबरदारों ने उनको जूते भी मारे हैं, और इसकी माँ और दादियाँ और नानियाँ हमेशा से ऐसे ही नजस काम में मशहूर रही हैं और सब मुर्दार खाते और गू खाते थे। अब खुदा ताला की कुदरत पर ख्याल करके मुमकिन तो है कि वो अपने कामों से ताइब होकर मुसलमान हो जाए, और फिर वो ये भी मुमकिन है कि खुदा ताला का ऐसा फजल इस पर हो कि वो रसूल और नबी भी बन जाए। जी जनाब मुफ्ती साहब एक भी लफ्ज जो है ये बताएं जो मिर्जा के खिलाफ है या मिर्जा पे फिट नहीं होता, एक लफ्ज बता दे। नहीं ये है ना रूहानी बातें ना मौलवी साहब, ये रूहानी बातें हैं, ये तुम मौलवियों की समझ में नहीं आ रही। सीधा जवाब साढ़े लो जवाब ही समझो। मुफ्ती साहब एक लफ्ज भी, एक लफ्ज, एक लाइन को छोड़े एक लफ्ज भी नहीं जो मिर्जा ने अपने खिलाफ लिखा। हकीकत इसने लिखी, आप बीती लिखी, अपनी आप बीती मुफ्ती साहब मैसेज भेज दिया आपको। अच्छा एक मिनट जी, डॉक्टर साहब का मैसेज आ गया है। एलो जी है अखबार, डॉक्टर साहब आया जे। हाँ जी खोलो हाँ जरा। ये कंप्यूटर पर खोलना पड़ेगा। हाँ जी आ गया, ये एक्रोबैट पर खोला है। हाँ अलबदर आपने भेज दिया, ये 19 जून 1903 का। ठीक है जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बड़ी साफ आपने तो ऐसा स्कैन ज़बरदस्त लगाया हुआ है। जी वो ना डॉक्टर साहब मैंने ना ये जो काले काले अखबार थे ना इनके बड़ी मेहनत करके क्लियर किए हैं। हाँ जी बहुत क्लियर है, लगता है आज ही छपे है। नहीं बहुत क्लियर स्कैन आपने भेजा है माशाल्लाह जी। डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾਜ ਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੀ ऐसा कोई तरीका, कोई ऐसा मतलब मेहनत नहीं करेंगे? किस चीज से मेहनत नहीं करते?
ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮਿਹਨਤ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੜ੍ਹੀ, ਉੱਥੇ ਹਵਾਲੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਯਾਰੋ ओरिजिनल ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਣ। मुफ्ती साहब वो हर एक की टेंडेंसी है ना, हर एक का अपना मिजाज है। हमें इंटरेस्ट है, मैंने 8-10 दफ़ा कार्रवाई पढ़ ली हुई है। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹਵਾਲਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। नहीं कादियानियत बारे हर चीज़ मौजूद है कार्रवाई च। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼। बल्कि वो जड़ी 1000 सफ़े दी ब्रीफिंग है ना मौलाना मुफ्ती महमूद दी ते वो मौलाना ज़हीर दी, वो ब्रीफिंग बड़ी ज़बरदस्त है। वो जब उन्होंने बात ये है कि इस जो 5 जिल्दों में जो काम है ना, जी जी, बड़ा बेहतरीन खूबसूरत काम किया कि इन्होंने हवाले लगाए हैं। हाँ नहीं उन्होंने ये काम बड़ा बाकमाल। मौलाना अल्लाह वसाया ने ना सिर्फ उसका तर्जमा अंग्रेजी का कर दिया है, बल्कि वहाँ पर जो हवाले सिर्फ नंबर से दिए गए थे वो उन्होंने पूरे पूरे लगा दिए। बिल्कुल पूरे पूरे लगाए। हाँ जी, वो मेरे अच्छा डॉक्टर साहब, आज को इजाजत दें भाई, सारे साहिबान राहो साहब दीगर सारे दोस्त भाई, नमाज का टाइम हो गया, मैनू इजाजत दियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कोई और भाई कोई बात करना चाहते हैं? हाँ काका सिपाही। जी डॉक्टर साहब। हाँ, नहीं तो फिर ब्रॉड बंद करें। देखें जमरोज़ खान साहब बैठ के सुन रहे हैं। जी जमरोज़ को मैंने रिक्वेस्ट डाली है। हाँ, बस अभी हम बंद करने लगे हैं, वैसे ही